friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2020 Criminal Law. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए ये एग्ज़ाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, किसी ने ये स्कैन करके डाला हुआ था। जो रियल कॉपी वैसे हमें मिल नहीं पाई है, जैसे कि हर बार हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो मिल नहीं पाई है। तो ये डाला हुआ किसी ने फ़ोटो खींच के, बट ठीक से नहीं किया हुआ, सारा क्लियर नहीं है, बट वी विल ट्राई कि आपको जो है समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द ड्रॉवर गोज फॉर अपील द ट्रायल कोर्ट कैन ऑर्डर मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट टू बी रिलीज टू द ड्रॉई। मतलब 20% जमा कराना पड़ता है आपको अगर आप अपील कर रहे हैं तो बी इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 148 के 1 में, और ये 2018 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। नेक्स्ट इज 2 द फॉलोइंग 3 कंडीशन प्रेसिडेंट्स विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द डिसऑनर ऑफ चेक कैन कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड बिकम पनिशेबल। चूज द ऑड वन आउट। The check ought to have been presented within the bank within 6 months from the date of which it is drawn. Yes, it is correct. But अभी जो है ये 3 month हो गई है by the order of RBI. चेक पर भी लिखा था present within 3 months. फिर the payer or holder ought to make demand for the said money by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days from the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check unpaid. फिर है drawer of such check should have failed to make payment of the said amount to the payee in due course within 15 days of the said notice. फिर है drawer of such a check should have failed to make payment of said amount to the payee in due course of the check within 30 days of the said notice. तो ये देखिए दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, तो अगर मान लो आपको आंसर नहीं भी आता है तो मतलब ये दोनों तो ठीक हो गई, ए और बी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो वहाँ 15 डेज़ की बात की गई है तो 30 डेज़ नहीं है, तो डी इसका आंसर हो गया। सेक्शन कौन सा है ये? 138 NI एक्ट। नेक्स्ट इज 3 पावर टू क्लोज लीकर वेंडर अंडर सेक्शन 14 इज वेस्टेड टू फाइनेंशियल कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डी इज द आंसर। Next 4, if a license holder for any person acting on his behalf sells or deliver liquor to any person apparently under the age of 18 years, he shall be punished with fine which may extend to 10,000 but not less than 2,000। मतलब 2,000 का तो मिनिमम फाइन है, 10,000 तक हो सकता है। सी इसका आंसर रहेगा। और एक मेंशन किया गया सेक्शन 24 ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में। Next 5, permit for scientific management of wild animals under section 12 of Wildlife Protection Act does not include translocation of any wild animal population या फिर translocation to suitable habitat या फिर population management by poisoning or otherwise destroying wild animal। तो scientific management थोड़ी हुआ है डी, तो वेरी ऑब्वियस हो गया ये तो आंसर। डी इज द आंसर। Next 6, the chief wildlife warden may grant permit to enter or reside in a sanctuary for the following purpose: फोटोग्राफी, टूरिज्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विद एनी पर्सन रेजिडिंग इन द सेंचुरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए तो बी इज़ द आंसर। और कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 28 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में। नेक्स्ट 7, पावर ऑफ एंट्री रिसर्च डिटेंशन अंडर द चैप्टर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 50। D is the answer. Next is 8. Whenever notification has been issued to constitute any land reserve forest, the forest must issue a proclamation. So specifying nearly as possible the situation and limits of the protest forest या फिर consequences that will ensue on the reservation of such forest या फिर notice that compensation claim will be entertained या fixing a period for claiming rights।
इसका है नोटिस दैट नो कंपनसेशन क्लेम विल बी एंटरटेन, सी इज़ द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 6 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। नेक्स्ट इज 9, द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? दैट इज 29A इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। State government may make rules to regulate the transit of all timber and the forest produce, ये बिल्कुल ठीक है। Section 41 will override rules made by the central government to prescribe the route by which timber other forest produce may be imported, ऐसा नहीं है, वो ओवरराइड नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रूल जो है वो ओवरराइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट वाले रूल को। ये लिखा हुआ है सेक्शन 41A ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लीव ड्यूटी, ये ठीक है। फिर ऑनर द लैंड मे राइट कलेक्टेड दैट हिज लैंड विल बी मैनेज बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर एज रिजर्व्ड, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? बी इज द आंसर विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 11, ऑल ऑफेंसेस अंडर हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट शैल बी बेलेबल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 एंड 40-41, सी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 53 के प्रोवाइजो में ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में। नेक्स्ट 12, एस नंबी नारायण वर्सेस सीबी मैथ्यूज इन द इसरो स्पाई केस, द कोर्ट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू पे 50 लाख कंपनसेशन टू द एपेलेंट, ए इज द आंसर। मूवी भी आई है इस पर, नंबी, अगर आपने देखी हो तो, आर माधवन है जिसमें। नेक्स्ट 13, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये जस्टिस मिल्टन के वर्ड हैं, वर कोटेड इन बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ए इज द आंसर। और किस पर है ये? सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पर। नेक्स्ट 14, जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी लिमिट्स एंड ओवरराइड ऑफेंसेस एंड पीनल प्रोविजन ऑफ द कोड एंड कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग सेक्शन, कितने में है? 76 से 106 तक, डी इज द आंसर। 96 से 106 क्या है? आरपीडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट है 15, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन इज अ डिफेंस फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर, कौन सी कैटेगरी में आता है ये? पार्शियल डिफेंस है ये, बी इज द आंसर। बिकॉज उसमें फिर वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, पूरी लायबिलिटी जो है वो एब्जॉल्व नहीं होती है, मर्डर विल बी टर्न इनटू कल्पेबल होमिसाइड, उसकी कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी फिर भी, तो पार्शियल डिफेंस हो गया, बी इज द आंसर। और ये है सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1। नेक्स्ट 16, actus reus is the result of human conduct which the law seeks to prohibit. The definition was given by Kenny, B is the answer. Next 17, constitution bench that held a company can be prosecuted for any offence and cannot go scot-free merely on the ground that it technically cannot be punished by way of imprisonment. The ruling of the constitution bench came in the case of Standard Chartered Bank versus Director of Enforcement, D is the answer. Next 18, the contemporary community standard test was stressed in which of the following case? ये था देवीदास रामचंद्र तुगलापुरकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए इज द आंसर। ये जो महात्मा गांधी पर किसी ने एक्ट बनाया था उसके लिए था ये, डिसेंसी और मोरालिटी पर भी था ये केस। और ये अगर आप देखेंगे हरियाणा ADA पेपर ऑफ 2016, वहाँ भी पूछा गया था इस केस को। नेक्स्ट 19, सेक्शन 416 नाउ स्टेट्स that if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall commute the sentence to imprisonment for life. कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था ये? क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 20, सेक्शन 433A was introduced by the amendment of CRPC 1978. The constitutionality of this provision was examined by the Supreme Court in case of सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर शत्रुघ्न चौहान, या फिर अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार गोलू, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 21, डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस पोटेंशिया इज अ डॉक्ट्राइन इन्वोक्ड इन केस ऑफ अटेम्प्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 22, चूज द रॉन्ग प्रपोजिशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन द केस ऑफ एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, बिल्कुल ठीक है, ये सेक्शन 100 में लिखा हुआ है ये। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ एक्ट थ्रोइंग एसिड विच मे रीजनेबली अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये ऐसे भी ठीक है। फिर कॉजिंग डेथ इनविजिबल टू हस्बैंड अगेंस्ट द एडल्टरर ऑफ हिज वाइफ, ये नहीं है, ये
अननेचुरल लस्ट वाला है, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ डी मिनिमस नॉन क्यूरेटिव एक्ट इज एम्बोडेड इन विच सेक्शन? सेक्शन 95 IPC, सी इज द आंसर। Next 24, Joseph Shine versus Union of India dealt with offense of adultery. Now it is unconstitutional, has been declared in Joseph Shine case. B is the answer. Next 25, for offense of conspiracy, the following is not true. Minimum 2% required, yes. Conspiracy is the rule of evidence. No, this is not. Offense is heavily mental in its composition. Mere agreement to do anything contrary to law is punishable. ये भी ठीक है, तो इसमें C is the wrong one, not true. C is the answer. Conspiracy का provision है ये, तो not a rule of evidence. It is a substantive offense under section 120A. Punishment का है 120B में. Next 26. The following principle is least relevant for criminal liability: causation, contemporaneity, या फिर novus actus intervenes, या फिर motive. ये है motive. Motive जो है least relevant होता है. Next 27, Union of India versus Shri Haran upheld the life imprisonment without remission, which was the first awarded in the case of Swami Shraddhanand versus State of Karnataka. C is the answer. Next 28, review petition in death penalty case should be heard by a 3-judge bench. A is the answer. और ये कौन से केस में डिसाइड किया गया था? ये केस था मोहम्मद आरिफ एट अशफाक वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर रिलेटेड मैटर्स, जजमेंट थी 2014 की। नेक्स्ट 29, सेक्शन 354(3) ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर रीजंस फॉर इम्पोजिंग डेथ सेंटेंस। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पार्डनिंग पावर कन्फर्ड ऑन प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज एब्सोल्यूट। ये बिल्कुल ठीक है। फिर है टू बी एक्सरसाइज्ड एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस। पावर कैन बी curtailed बाय द सुप्रीम कोर्ट, नो। Without the consent of offender can commute that sentence, yes. तो C इसका आंसर हो गया incorrect. Next 31, ignorance of law is not a defense. However, contemporary scholars are less sanguine about this rule. A scholar argues that when an accused had not taken reasonable measures to comply with the law, was nevertheless reasonably ignorant, or mistake should be allowed as a defense. The criminal law scholar is Andrew Ashworth. A is the answer. Next 32, Priya Patel versus State of Maharashtra held that a woman cannot be held guilty of gang rape. C is the answer. Next 33, exception 2 to section 375 states that non-consensual sexual intercourse by a man with his own wife does not amount to rape. Presently, the age circumscribed for this exception is 15 years. Exception 2, तो अभी आज के टाइम में देखिए उसमें लिखा हुआ है वाइफ नॉट बीइंग अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स, तो डी इसका आंसर रहेगा। हाउएवर, नॉर्मल केस में कितनी एज है कंसेंट की? 18 ईयर्स। नेक्स्ट 34, द लॉ प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम। सेक्शन कौन सा है? 228A. बी इज द आंसर। नेक्स्ट 35, द 2-finger टेस्ट वाज क्वेश्चन इन अ केस एंड वाज हेल्ड वॉलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी, फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स। द केस वाज Lilu versus State of Haryana. A is the answer. Next 36, when a criminal case is transferred from one state to other, the appropriate mechanism is a transfer that state appoints a PP, a transferee state appoints a PP, या फिर complainant exercises a choice, या फिर either of two, transfer या फिर transferee। तो transferee state जो है वो appoint करेगी PP. B is the answer. Next 37, DK Basu guideline deals with right of an arrested person, SOP for arrest. D is the answer. Next 38, registration of FIR is mandatory in case of cognizable offense. This was held by constitutional bench in case of Lita Kumar versus State of UP. C is the answer. Next 39, default bail is given in case of सेक्शन कौन सा है? 167, और कब देते? वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड। ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 40, एज पर द सेक्शन ऑफ CRPC द कोर्ट ऑफ हिज ओन कैन एग्जामिन एनी पर्सन एज अ कोर्ट विटनेस। इट इज सेक्शन 311. डी इज द आंसर। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Offences under the Protection of Civil Rights Act cannot be compounded.
Okay. Non-compoundable offense can be compounded with the permission of the court. Okay. Some offenses are recognized. No, it is incorrect. Non-compoundable offenses can be compounded with the permission of the court. No, it is also incorrect. Some offenses are recognized compoundable offenses, other में compoundable only with the permission of the consent of the victim. No, ये भी गलत है. Offenses can be compounded but it does not amount to acquittal. ये भी गलत है. तो जैसे कोई भी ठीक नहीं है, वो एक्विटल ही होता है. ये लिखा हुआ सेक्शन 320 के सेक्शन 8 में कि वो एक्विटल होगा. जो कंपाउंड कर लिया है तो एक्विटल माना जाएगा. सारे रॉन्ग हो गए इसमें फिर तो. नेक्स्ट 42 मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 लिमिटेड टू, ये रॉन्ग है. फिर इज टू डिस्पोज्ड विद इन द रीजनेबल टाइम, हाउएवर नो टाइम फ्रेम इज गिवन, ये भी रॉन्ग है. लिखा हुआ है टाइम पीरियड. देखिए इंटरिम के लिए तो दिया हुआ है वहाँ पर 60 डेज के अंदर उसको जो है डिस्पोज ऑफ करना है इंटरिम मेंटेनेंस का. कैन बी डिनाइड टू वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, ये बिल्कुल ठीक है. 125 में मेंशन किया गया है. ये तो इज ओनली फॉर दी वाइफ. नो, ये चिल्ड्रन भी ले सकते हैं, पेरेंट्स भी ले सकते हैं. तो सी इसका आंसर हो गया. सी इज करेक्ट. नेक्स्ट 43 आदम भाई सुलेमान भाई अजमेरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इज अ क्लासिक केस ऑफ wrongful prosecution. B is the answer. Next 44 which of the following is incorrect? Section 300 embodies the principle of auto force convict auto force acquitted, बिल्कुल ठीक है. Article 20 का 2 of Constitution guards against double jeopardy. Yes. फिर a victim impact statement is taken before pronouncing sentence, ये गलत है. Judgment of the court is written in the language of the court. Yes, ये बिल्कुल ठीक है. तो आंसर क्या हो गया इसमें? C is incorrect. Next 45 plea bargaining in India is a sentence bargaining. A is the answer. चैप्टर 21A है. सेक्शन कौन सा है? 265A से 265L तक. और कौन सी अमेंडमेंट से है? 2006 की अमेंडमेंट से विद इफेक्ट फ्रॉम 5/7/2006. ये भी पूछ लेते हैं एचपी में. नेक्स्ट 46 एवरी इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले अंडर सेक्शन 173. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. पुलिस फाइल्स अ रिपोर्ट नोन एज चालान आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. नो, बिफोर फ्रेमिंग उसी के बेस पे तो चार्ज फ्रेम होगा. ये हो गया गलत. पुलिस फॉर्म्स एन ओपिनियन एंड द मजिस्ट्रेट इज बाउंड. नो, मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड. मजिस्ट्रेट फ्रेम द चार्जेस आफ्टर फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट. यस. पुलिस एंड मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन फ्रेम चार्जेस. नो, कंसल्टेशन क्यों करेंगे? तो सी इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 47 द लायबिलिटी इंक्वायरी अंडर 30 ऑफ सेक्शन 300 IPC, मतलब मर्डर के केस में क्या है? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी है या फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, या सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 48 इन स्क्रूटनी ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट डज द फॉलोइंग. चूज द करेक्ट कोर्स अवेलेबल. इफ मैजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस मेंशन, ही स्टिल मे टेक कॉग्निजेंस इफ इट इज अ कंप्लेंट केस. नो, ये रॉन्ग है. मैजिस्ट्रेट टेक्स द कॉग्निजेंस ऑफ द केस बट कैन नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट. कॉग्निजेंस लेगा तो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, ये भी गलत हो गया. मे लुक इन द कंप्लेंट एंड सेंड इट टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन. यस, बिल्कुल ठीक है ये. फिर डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इवन इफ ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द सेशन कोर्ट. ये रॉन्ग हो गया. सेशन कोर्ट के पास भेजेंगे. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट? कन्फेशन और स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ये ठीक है. कैन बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन हुम पावर मैजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड. ये हो गया रॉन्ग. Confession statement can be recorded in the course of investigation. Yes. Can be recorded only when it is being voluntary. Yes. So B is the answer. Section कौन सा है? 164 CRPC. Next under section 143A negotiable instrument act, the court may order drawer of the check to pay interim compensation to the complainant which is shall not exceed 20% of the amount of check. C is the answer. और ये भी 2018 की amendment से insert किया गया है. So friends, here we have discussed preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2020 papers criminal law. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है, कोई सजेशंस, कोई एडवाइस है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees.
एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.